Good morning to all my students. Today I start with a new topic, Administration Act and Rules. Administration Act and Rules. So, what are the Administrations Act and what are the rules for administration? तो सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशंस का जो मेन एक्ट होता है वो फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरीज। फर्स्ट बिलोंग्स टू एडवाइजरी जिसमें एडवाइस दिया जाता है या लिया जाता है। सेकंड बिलोंग्स टू Analytical means you are going to perform a test or analysis. And third is executive level, where everything is going to be executed, means executive. मीन्स पहला कैटेगरी जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स के फेवर में आता है वो इट इंक्लूड्स फॉर द 3 कैटेगरीज। पहला एडवाइजरी, दूसरा एनालिटिकल एंड थर्ड वन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूट। तो एडवाइजरी में भी फर्दर 2 सब कैटेगरीज में आते हैं। पहला आता है DTAB, नोन एज ए ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी में ही दूसरी एक कैटेगरी आती है, एक कमेटी आती है सब कैटेगरी में, DCC, नोन एज ए ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी। The second category belongs to administration of the act and rules is analytical, where we are going to perform an analysis or test reports. तो CDL सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरीज, नाम से समझ में आ रहा है लैबोरेटरी, CDL सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरीज। द सेकंड वन इज laboratory in states known as a drug control laboratory. Third one is government analyst, means analytical, classified into for the 3 categories, subcategories: central drug laboratory, drug control laboratory and government analyst. Third category belongs to executive, where everything is going to be executed, the acts and rules related to drugs and cosmetics administration. तो executives को further 3 category सब category में बांटा है। licensing authorities, controlling authorities and last one but not the least, drug inspectors. लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ एंड ड्रग इंस्पेक्टर्स। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स में 3 कैटेगरी इन्वॉल्व होती है। पहला एडवाइजरी, दूसरा एनालिटिकल एंड तीसरा एग्जीक्यूटिव्स। ओके, फर्दर ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, पहला ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, एडवाइजरी में आ रहा है ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी। तो इसका फंक्शन क्या होता है? तो टू कोऑर्डिनेट द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड मीटिंग्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल मैटर्स arising out of the administration of the Drugs and Cosmetic Act. Means the main functions of Drug Technical Advisory Board is to coordinate the meetings. To coordinate the meetings under the chairmanship of Director General of Health Services DGHS, और इनका जो मेन रोल रहता है मीटिंग का, टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए
Advice related to what? Advice related to technical matters arising out of the administrations of the Drugs and Cosmetics Act. ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो भी टेक्निकल मैटर्स है, इशूज है, these are all things to be advised to the central government as well as the state government. The second function of Drug Technical Advisory Board is to initiate the amendments. To initiate the amendments क्या है? To initiate the amendments. और amendments related to what? Amendments related to in the Drugs and Cosmetic Acts and Rules 1940 as per the recommendations of Drug Technical Advisory Board and coordinate with the Ministry of Health and Family Welfare for draft and final gazette notifications. Means final drafting करने के लिए gazetted notifications के लिए amendments को initiate करने का भी काम किसका रहता है? Amendment को initiate करने का final काम रहता है Drug Technical Advisory Board. The most important third function is to examine, to compile the things and articles and consideration of comments or suggestions, objections received with respect to draft gazette notifications or further circulars. Means third function क्या होता है? To examine, to compile and consideration of comments and suggestions, objections which are further received with respect to draft gazette notifications or further through circulars. Fourth function क्या होता है? To coordinate the constitution of subcommittees. सब कमिटीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को कोऑर्डिनेट करने का भी काम किसका रहता है? DTAB. लास्ट फंक्शन क्या है? प्रोसेसिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशंस विथ रेस्पेक्ट टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट्स एंड रूल. प्रोसेसिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन या RTIs या पब्लिक ग्रीवियंसेस विथ रेस्पेक्ट टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स एंड रूल्स. मीन्स ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, नाम से समझ में आ रहा है एडवाइजरी बोर्ड है, वो भी कैसा है? टेक्निकल है. तो टेक्निकल फील्ड या टेक्निकल एस्पेक्ट को कंसीडर करते हुए पहला रोल क्या होता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रोल ऑफ द DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज टू कोऑर्डिनेट द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी मीटिंग्स, टू कोऑर्डिनेट द मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज. डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज किस लिए कोऑर्डिनेट करना है? टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट ऑन रिगार्ड्स टू टेक्निकल मैटर्स. दूसरा क्या होता है? टेक्निकल मैटर्स रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स एंड रूल. The second function of the Drug Technical Advisory Board is to initiate the amendments in drugs and cosmetics acts and rules. To initiate the amendments, ये दूसरा काम. फिर third function is to examine करना, उसका निरीक्षण करना, उसको compile करना, bind up करना, उसका comments और उसका suggestion and objections regarding gazetted notifications और circulars. ये भी काम किसका है? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड. फर्दर क्या है? कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सब कमिटीज रिकमेंडेड इन ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड्स मीटिंग्स. मीन्स कोऑर्डिनेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सब कमिटीज के कॉन्स्टिट्यूशन को भी क्या करना है? कोऑर्डिनेट करना है. और ये किसका काम है? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB. लास्ट फंक्शंस क्या है?
processing of representations or public grievances with respect to drugs and cosmetics acts and rules. So these are all the functions of Drug Technical Advisory Board. Further, now comes the Central Drug Laboratory. इसका सेकेंड एडवाइजरी बोर्ड का सब कैटेगरी। तो नाम से समझ में आ रहा है कि ड्रग लेबोरेटरी बिलोंग्स टू अ सेंट्रली मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। तो CDL स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। CDL इस्टेब्लिश कहाँ है? वो कलकत्ता में इस्टेब्लिश्ड है। किसके अंडर में है? अपॉइंटेड बाय ए सेंट्रल गवर्नमेंट। अपॉइंटेड बाय ए सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कंट्रोल कर रहा है, उसके थ्रू कंट्रोलिंग होती है। उसके अंडर कंट्रोल में कौन रहता है? CDL, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, कंट्रोल्ड बाय ए सेंट्रल गवर्नमेंट, अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो जब कंट्रोल अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अपॉइंटेड बाय विच गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एग्जाम में पूछते हैं, तो आप बोलोगे कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ए डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ए सेंट्रल गवर्नमेंट। वेयर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL is established? Calcutta, Mumbai, Chennai, Bhopal. So your answer will be Calcutta. C for C, CDL, C for C. Central Drug Laboratory is situated in Calcutta. The basic functions of Central Drug Laboratory. To laboratory where you are going to test or perform an analysis of samples. यहाँ samples किसका होगा? Regarding to drugs and cosmetics. दूसरा, analyticals means the role of quality control of the imported samples की analytical testing और को perform करने के लिए। अब जब हम एनालिटिकल टेस्टिंग या सैम्पलिंग करने जा रहे हैं या एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू मूव टूवर्ड्स फर्स्टली टू कलेक्शन, देन यू हैव टू फर्दर गो टूवर्ड्स टू स्टोरेज, एंड आफ्टर कलेक्शन एंड स्टोरेज द लास्ट स्टेप इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहले हमारा बनाना पड़ेगा प्रिपरेशन ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, as well as their maintenance is required, maintenance of microbial cultures or any other duties entrusted by central government. इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देगा, you have to carry out that, या you have to perform based on that. You have to do your duty, acting as an appellate authority in matter of disputes. So, the Central Drug Laboratory is basically established in Calcutta, which comes under the direct control of a director, which are further appointed by a central government. The basic functions of a central drug laboratory, the main function क्या है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का? जैसे नाम से समझ में आ रहा है लेबोरेटरी, देन डेफिनेटली द मेन फंक्शन इज टू कैरी आउट द एनालिसिस और टेस्ट ऑफ द सैंपल्स विथ रिगार्ड्स टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। तो जब हम एनालिसिस और टेस्टिंग कैरी आउट करने लगे, तो डेफिनेटली वी हैव टू गो फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए रेफरेंस स्टैंडर्ड्स। और जब रेफरेंस स्टैंडर्ड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू मूव टूवर्ड्स देयर मेंटेनेंस, मूव टूवर्ड्स देयर एनवायरमेंटल कंडीशंस मॉनिटरिंग। फर्दर यू शुड मूव टूवर्ड्स द मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोबायल कल्चर्स। Everything is necessary, and these are all the functions of a basic functions of central drug laboratory. और क्या करेंगे हम?
कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन ऑफ सैंपल्स, उसका स्टोरेज एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड्स। और इसके अलावा एनी अदर ड्यूटीज इंटरेस्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एवरीथिंग यू हैव टू डू एज इंटरेस्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। Now comes the Drugs Consultative Committee. So, the Drugs Consultative Committee belongs to an advisory board constituted by central government. जैसा DCL Drugs Control Laboratory direct under the control of a director or appointed by central government, same as it is जो Drugs Consultative Committee है, एडवाइजरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्रग्स कंसल्टेटिव कमिटी इंक्लूड्स 2 representatives from the central government, 2 representatives of the central government and 1 representative of each state government. Means the constitution of Drugs Consultative Committee DCC, तो ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने रिप्रेजेंटेटिव? 2 representatives. There must be 2 representatives from the central government. And from each state government there should be 1 and 1 representatives. तो ये क्या हो गया? ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशंस। फर्दर जब हम फंक्शंस की, बेसिक फंक्शन की बात करें, उसका बेसिक कार्य क्या है ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी की, व्हाट आर द रोल्स, बेसिक रोल्स बिहाइंड ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी, तो सबसे पहली चीज टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एनी अदर मैटर टेंडिंग टू सिक्योर यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट इंडिया इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। मीन्स बेसिक फंक्शन क्या होता है कि एडवाइज करना, टू एडवाइज, बेसिकली टू एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, इन सारी चीज़ों को एडवाइज करना सो दैट देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट इंडिया इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945। और द ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी शैल मीट व्हेन रिक्वायर्ड, और जब भी चाहिए कोई अगर मीटिंग की ज़रूरत करे तो डेफिनेटली ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी मस्ट कॉन्टैक्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एनी मैटर टेंडिंग रिलेटेड टू सिक्योर यूनिफॉर्मिटी, हैज़ पावर टू रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर। मीन्स ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी के पास ये पावर होता है that he or she can regulate its own procedure. Now comes the government drug analyst. So basically जब हम गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट के लिए द बेसिक क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? These officers are appointed by either by state government or central government. Means government drug analyst किसकी तरह होता है? Appointed by the help of appointed by the help of government. Either it may be central government appoint कर सकता है या फिर state government। दूसरा qualifications में क्या होता है कि persons having qualifications for appointment as government analysis for drugs। और थर्ड में क्या है कि must have a degree in basic degree in medicines, Ayurveda
सिद्धा और यूनानी सिस्टम and not less than 3 years postgraduate experience in the field of analysis of drugs. मीन्स गवर्नमेंट ड्रग एनालिसिस लिस्ट बनने के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड इज, बेसिक क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए गवर्नमेंट ड्रग एनालिसिस के लिए कि पहली चीज़ तो ऑफिसर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, और इनका जो क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट इज़ कैरिड आउट एज पर द गवर्नमेंट। इनके पास एक डिग्री होनी चाहिए बेसिकली इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन या फिर आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी सिस्टम होना चाहिए। इन तीनों में से किसी में भी मेडिसिन की डिग्री होनी चाहिए। एंड फॉर नॉट लेस देन 3 years पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एनालिसिस ऑफ ड्रग। अब जब हम ड्यूटीज़ क्या है हमारे गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट की, तो जब हम गवर्नमेंट ड्रग की एनालिस्ट की ड्यूटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उनके फंक्शंस रोल्स की बात करते हैं तो पहला रोल आता है टू कैरी आउट द टेस्ट और टू कैरी आउट द एनालिसिस ऑफ सैंपल्स विथ रिगार्ड्स टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स as may be sent to him by inspectors. सैंपल्स ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के जो भी सैंपल्स जो कि इंस्पेक्टर ने भेजे हैं उनको एनालाइज करना, उनको टेस्ट परफॉर्म करना, और फर्दर टेस्ट करने के बाद जो सेकंड मोस्ट ड्यूटीज आती है टाइम टू टाइम फॉरवर्ड द रिपोर्ट्स टू द गवर्नमेंट giving the result of analytical work and research with a view to their publications. Means basic functions of a drugs, किसी भी ड्रग्स गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट का है कि पहली चीज़ एनालिस्ट ही है तो ही और सी हैज़ टू परफॉर्म एनालिसिस और टेस्टिंग ऑफ सैम्पल्स which are sent by inspectors to him. Or time to time forward the report, what the reports of that particular analysis or testing carried out by government drug analyst to the government. गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम रिपोर्ट भी फॉरवर्ड करेगा गिविंग द रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल वर्क, जो भी एनालिटिकल वर्क कैरिड आउट हुआ है उसका फाइनल रिजल्ट्स, उसका फाइनल कंक्लूजन, and research with view to their publications. These are all the duties of government drug analyst. Further, जब हम लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ की बात करेंगे, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़, तो जब हम अथॉरिटी की बात करते हैं तो इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस होती है, ऑल मेंबर्स शुड बी ग्रेजुएट इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और इन मेडिसिन विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। मीन्स पहला जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी की, वो ये है कि बेसिकली क्या होना चाहिए, ए कैंडिडेट शुड बी ए ग्रेजुएट इन फार्मेसी और ग्रेजुएट विथ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और ग्रेजुएट इन मेडिसिन विथ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए मेडिसिन के लिए इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। दूसरा चीज़ जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 5 years एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग ऑफ ड्रग। 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स। और क्या होना चाहिए लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ की जो बेसिक ड्यूटीज़ है, तो पहली ड्यूटी क्या होती है, टू इंस्पेक्ट ऑल द इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस्ड फॉर द सेल ऑफ ड्रग्स विद इन द एरिया असाइन टू हिम। जो एरिया उस लाइसेंसिंग अथॉरिटी को असाइन किया है, निर्धारित किया है, उस एरिया को पूरी तरह इंस्पेक्ट करना
for regarding to sale of drugs. फिर the second thing is that कि to satisfy himself that the conditions of the license are being observed. ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी पूरी तरह सेटिस्फाई होनी चाहिए, वेल सेटिस्फाई होना चाहिए that the conditions of the licenses are being observed. Third thing is that to procure and send for test or analysis if necessary. अगर ज़रूरत पड़े तो उसकी प्रोक्योरमेंट और उसकी सेंडिंग सैम्पल्स की टू कैरी आउट द टेस्ट एंड एनालिसिस, अगर ज़रूरत पड़े तो वो भेज सके. टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट, अगर कोई कंप्लेन आती है तो फर्दर द रोल ऑफ ए लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज़ टू इन्वेस्टिगेट दैट कंप्लेंट. फिर और क्या है, टू मेंटेन ए रिकॉर्ड of all inspections made and actions taken by him in the performance of his duties. मीन्स जो भी ड्यूटीज़ कर रहा है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पर्सन्स, तो ही और सी मेंटेन्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंस्पेक्शंस. जितनी भी इंस्पेक्शन, जितनी भी उसने ड्यूटीज़ परफॉर्म की, he or she has to maintain a record of all inspections. To make such inquiries and inspections as be necessary to detect for the sale of drugs in contraventions to the Act. These are all the basic functions and basic duties, the basic minimum qualifications requirement regarding licensing authority. Now comes the role of controlling authority. तो as the name suggests, जैसा कि नाम देख रहे हैं आप, कंट्रोलिंग अथॉरिटी मीन्स ऐसी अथॉरिटी जो कंट्रोल करती है रिगार्डिंग द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स, रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट नोन एज ए कंट्रोलिंग अथॉरिटी. मीन्स ऑल इंस्पेक्टर्स or appointed by central government shall be under the control of an officer appointed in the behalf of the central government and the state government. दूसरी चीज़ क्या होती है, for the purpose of these rules an officer appointed by the central government under sub rule 1 or as the case may be an officer appointed by the state government under sub rule 2 shall be a controlling authority. So these are the basic roles of controlling authority. आगे बढ़े हम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट्स एंड रूल में. तो जब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट्स की जब बात हम कर रहे हैं, ड्रग्स इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली drug inspectors are basically appointed by the central government as well as state government, or drug inspectors are basically the public servants, and officially their main role is to subordinate to the controlling authority a persons without any financial interest in case of the import, manufacture और सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स. मीन्स ड्रग इंस्पेक्टर का बेसिकली अपॉइंटमेंट होता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट करता है. ये एक तरह से पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं और बेसिक फंक्शंस क्या होता है, टू सबऑर्डिनेट ऑफिशियली टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, सबऑर्डिनेशन का काम करते हैं और ये काम करते हैं विदाउट एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट. The basic qualifications regarding the drug inspector appointment. पहली चीज़, a person must have a degree in field of pharmacy या फिर pharmaceutical chemistry or medicine with a specialization in clinical pharmacology or microbiology from well recognized university.
अगर ये नहीं है तो दूसरा एक और ऑप्शन है कि फॉर इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सब्सटेंस इन शेड्यूल सी 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेस्टिंग, और एटलीस्ट नॉट लेस देन 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. These are all the qualifications required for drug inspectors. So for today I have explained you all the requirements of the administration of the act and rules. Further categories divided into 3 types, and further their subcategories. So for today, thank you and hope you are all fine. Wish you all the best.